Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? I hope that you all are fine and safe at your home. Today is 1st of June 2021, day is Tuesday, and you're having your science lesson with me. The chapter that we will be learning today is unit number 4. The name of the unit is Other Living Things. We have already started this chapter and we are done with the topic difference between plants and fungi. So before continuing the new topic today, we will revise this topic of plant and fungi, and then I will move forward with the new topic. So can you tell me, like, what could be the difference between plant and fungi? Very good, Khansa. Plants are having the very clear stem, leaves and roots, whereas fungi are not having roots, stems and leaves. This will be the first difference that we have studied in our yesterday's videos of science. The first difference that we have learned about the plant and fungi was plants are having the clear root, stem and leaves, but fungi do not have root, stem and leaves. The second difference was some of the plants are having flowers, but fungi do not have any flower. Fungi के ऊपर flowers नहीं होते, plants के ऊपर flowers होते हैं. ठीक है, this was the second difference. And the third difference was that plants are able to produce or manufacture their own food, whereas fungi are not able to produce their food. Fungi अपनी food खुद prepare नहीं कर सकता. This raises a question that why if fungi is not able to produce its own food, from where it is getting the food? So remember, आप फंगस किसी चीज़ के ऊपर लगे हुए देखते हो, या फ्रूट्स के ऊपर होती हैं, क्लोथ्स के ऊपर होती है, या फिर किसी भी लाइक ब्रेड के ऊपर किसी भी जगह पर होती है. जिस चीज़ के ऊपर वो अटैच्ड होती है वहाँ से वो फूड एब्जॉर्ब कर रही होती है, वहाँ से उसको फूड मिल रही होती है. ठीक है, जबकि प्लांट्स अपनी फूड खुद प्रिपेयर करते हैं और पूरे पार्ट्स को प्रोवाइड करते हैं. दिस वाज द लास्ट एंड द थर्ड डिफरेंस बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स. And this is what we have studied in our previous video of science. Also, I have shared with you that there was a scientist named Louis Pasteur who was a microbiologist, was living in France, जिसने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी की. एंड ऑल द इंफॉर्मेशन दैट वी आर गेटिंग एंड वी नो अबाउट द लिविंग थिंग्स that is being provided by the Louis Pasteur. There are some other scientists as well, but the major working is done by this scientist, Louis Pasteur. Okay, so this is all about the revision about for previous topic. Let's continue with our main topic today, that is another microorganism named bacteria. So class 5, bacteria are also the microscopic living organism. When we are saying microscopic, it means that we are not able to see them through the naked eyes. हम अपनी आम आंख से इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते. We need a electronic microscope to see them. जो माइक्रोस्कोप उन चीज़ों को देखने के लिए यूज़ होती है that we are not able to see, जो हम आम आंख से नहीं देख सकते. ठीक है, so bacteria is one of that living organism. It is single celled. ये सिर्फ एक single cell पे consist होता है. The diagram of bacteria I have drawn it on the board. The outermost layer जो आपको नजर आ रही है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और इसके सेंटर में जो कॉइल्ड चीज़ें हैं, that is DNA. Now what is DNA? DNA is the abbreviation of the word. The word DNA stand for deoxyribonucleic acid. D stand for deoxyribo, N stand for nucleic and A stand for acid. ठीक है, अब ये DNA होता क्या है? So always remember this कि हमारी बॉडी में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जो सेल्स के पास होती है कि वो कैसे ग्रो करेंगे और उनकी बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस होंगे और कैसे ग्रोथ होगी, ये सब इंफॉर्मेशन जो है वो DNA के पास होती है. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस की एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे अगर कोई न्यू बेबी है, आप देखते हो आपके सिबलिंग्स जो हैं, आप खुद भी अपने पेरेंट्स के साथ आपके बहुत सारे फीचर्स मैच हो रहे होते हैं, बिकॉज आपका डीएनए आपके पेरेंट्स से रिजेंबल कर रहा होता है. आपके कुछ फीचर्स आपके फादर से मिल रहे होते हैं, कुछ आपकी मदर से मिल रहे होते हैं. क्यों?
क्योंकि आपका और आपके पेरेंट्स का डीएनए सेम होता है, ठीक है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर फॉर एग्जांपल जैसे कोई ब्लास्ट हो जाता है या कोई मिस हैपनिंग हो जाती है जिसमें हम किसी भी ह्यूमन की आइडेंटिटी नहीं कर पाते, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये कहाँ से है, कौन इंसान है, उसका बिल्कुल नहीं पता चल रहा होता, तो फिर हम क्या करते हैं, फैमिली मेम्बर्स का डीएनए सैंपल लेते हैं और उस डेड बॉडी का डीएनए सैंपल लेते हैं, और अगर डीएनए मैच कर जाए तो फिर हमें पता चल जाता है दैट दिस पर्सन बिलोंग टू दैट वन। और डीएनए सैंपल मैच सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ करता है, किसी और के साथ मैच नहीं करता, ठीक है। इसी तरह अगर आप एनिमल्स की एग्जांपल लो, अगर लेट्स सपोज हमारे पास कोई पर्शियन कैट है, तो पर्शियन कैट का जो के बेबीज़ होंगे वो बिल्कुल उसी तरह के होंगे। वाई? बिकॉज उसके अंदर जो डीएनए है, जो उसकी इन्फॉर्मेशन है, वो उस कैट से बिलोंग कर रही है। ऐसा नहीं होता कि पर्शियन कैट के जो बेबीज़ हैं वो किसी भी नॉर्मल सी जैसे हमारे पास कैट्स होती है उस तरह के हो जाएं। इट्स नेवर लाइक दैट। तो आपके जो डीएनए है दैट बिलोंग्स टू योर फैमिली, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके साथ मैच कर रहा होता है, आपके पेरेंट्स के साथ मैच कर रहा होता है, ठीक है। और बेसिकली डीएनए पर आपकी लाइफ की आपकी जो बॉडी की जो ग्रोथ प्रोसेस है ना, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि किसी के आई कलर कैसा होगा, किसी का हेयर कलर कैसा होगा, हाइट कितनी होगी, फीचर्स कैसे होंगे। दिस ऑल थिंग्स आर द इंफॉर्मेशन इज रिटन ऑन द डीएनए के ऊपर होती है, ठीक है। इसी तरह ये डीएनए बैक्टीरियाज में भी होता है, और बैक्टीरियाज में भी डीएनए का यही काम होता है कि वो सेल को ये बताता है कि सेल ने क्या प्रोसेस कंटिन्यू करना है, ठीक है। बैक्टीरियाज के बारे में आई वाज टेलिंग यू दैट दे आर सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल होता है इनके अंदर, जबकि आपको पता है ह्यूमन बॉडी में मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं। हमारे नर्व सेल्स डिफरेंट होते हैं, ब्रेन सेल डिफरेंस होते हैं, स्किन सेल डिफरेंस होते हैं, तो कि बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जो सेल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, हार्ट सेल डिफरेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनी होती है, जबकि जो एक बैक्टीरिया होता है उसकी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक सेल होता है। तो अगर हम बैक्टीरियाज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताएं या इसके फीचर्स के बारे में बताएं, तो यू विल बी राइटिंग बैक्टीरियाज आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स. Microscopics are those that we are not able to see them through our naked eye. We need a compound or electron microscope to see them, right? Then we have discussed like they are single celled, उनमें सिर्फ एक सेल होता है. They are like this, the diagram that I have drawn it on the board. और उनमें सारी information होती है, ठीक है. और the third point is what is the working of bacteria. Bacteria का काम क्या होता है? Basically the bacteria are decomposers. ठीक है. अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? आई विल टेल यू. फर्स्ट थिंग इज बैक्टीरियाज आर डिकम्पोजर्स. अब डिकम्पोजर्स क्या होते हैं? डिकम्पोजर्स आर द वन दैट ब्रेक डाउन द लार्ज पार्टिकल इनटू द स्मॉलेस्ट वन. जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको स्मॉलर में चेंज करने का जो प्रोसेस होता है ना, उसको डिकम्पोजिशन भी कहते हैं और उसको डिकम्पोजिंग भी कहते हैं. और बैक्टीरिया क्योंकि वो काम कर रहे हैं तो इसलिए हम इनको डिकम्पोजर्स कह रहे हैं, ठीक है, जो किसी भी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है. बैक्टीरियाज आर बेनिफिशियल एंड दे आर ऑल्सो हार्मफुल. बहुत सारे बैक्टीरियाज जो हैं बहुत डेंजरस होते हैं, जैसे कि जर्म्स बैक्टीरिया जो होते हैं, हमारे हाथों पे जो जर्म्स लग जाते हैं दैट आर कॉज्ड बाय बैक्टीरियाज, वो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ कॉज करते हैं. बट देयर आर सम बैक्टीरियाज दैट आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. जैसे आपको पता है जो योगर्ट आप बनाते हो, दही जिसको कहते हैं, दैट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बैक्टीरिया. आपकी मामा क्या करती हैं, कभी आपने अगर नहीं देखा तो अब आपने देखना है कि जब वो आप घर में जो योगर्ट बनाते हैं, क्या करते हैं कि जो योगर्ट होता है उसकी स्मॉल क्वांटिटी को मिल्क में ऐड कर देते हैं, ठीक है. तो साइड आप उसको कुछ आवर्स के लिए उसको पड़ा रहने देते हैं, उसको कवर करते हैं, हीट प्रोवाइड करते हैं, और अर्लीस्ट मॉर्निंग आप जब देखो या जो भी किसी टाइम के बाद आप देखो तो उसमें वो जो मिल्क है वो योगर्ट में चेंज हो जाता है. हाउ? बिकॉज ऑफ द एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरियाज. तो जो योगर्ट हम खाते हैं वो भी एक्चुअली हम बैक्टीरियाज खा रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है. आपको पता है कि अगर हम अर्लीस्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में योगर्ट ऐड करते हैं तो हमारे स्टमक में जो जर्म्स होते हैं बैक्टीरियाज उनको किल कर देते हैं. तो योगर्ट इज़ वेरी हेल्दी फॉर योर डाइट और आपको बहुत ज़्यादा लास्टिंग एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी बहुत सारी डिजीज़ के साथ फाइट करता है. तो योगर्ट इज़ वेरी गुड टू ईट. आइंदा जब आप योगर्ट खाएं तो यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू आर नॉट जस्ट ईटिंग योगर्ट, यू आर एक्चुअली इन टेकिंग द गुड बैक्टीरियाज दैट आर वेरी गुड फॉर योर हेल्थ. आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं,
ठीक है। इसके अलावा आप देखो जो हम बेकिंग करते हैं, बेकिंग में अगर आपने अपनी मामा को या किसी भी बड़ी बहन या भाई को कभी बेकिंग करते हुए देखा हो, तो जो भी कोई फ्लोर या डो होती है उसमें वो कोई चीज़ यीस्ट ऐड करते हैं। यीस्ट इज़ ऑल्सो अ माइक्रो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बैक्टीरियाज हैं जिनको जब हम उस डो में ऐड कर देते हैं तो वो उसको फुला देता है, उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाता है और बहुत सॉफ्ट हो जाता है। हम ये सब चीज़ें अपनी डेली लाइफ में कर तो रहे होते हैं, बट वी डोंट नो दैट व्हाट दीज थिंग्स आर एक्चुअली। अब आप देखो कि आप एक नॉर्मल जो फ्लोर होता है, आटा होता है, उसमें जब आप उसको नॉर्मली जब आप उसको ब्लेंड करते हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल हार्ड होता है। जैसे ही आप उसमें यीस्ट यहाँ पे बैक्टीरियाज ऐड करते हो तो वो उसको फ्लफी सॉफ्ट कर देते हैं, उसको फुला देते हैं और जिससे आपकी बेकिंग आइटम्स बनती हैं, ठीक है। तो बेकरी में भी बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं, दैट आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ऑल्सो हम जो योगर्ट यूज़ करते हैं उसमें भी बैक्टीरियाज यूज़ होते हैं, ठीक है। कुछ डाइंग मटीरियल ऐसा होता है, जैसे हम कपड़ों को डाई करते हैं, कलर्स करते हैं, उसमें भी बैक्टीरिया यूज़ होते हैं, ठीक है। तो देर आर सम बैक्टीरियाज दैट आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड फॉर अदर लिविंग टास्क, बट देर आर सम बैक्टीरिया दैट आर वेरी डेंजरस, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी होते हैं, दैट कॉज डिजीज़ इन आवर बॉडी, तो हमारी बॉडी में डिजीज़ भी कॉज करते हैं, ठीक है। So there are different types of bacteria as I have described you earlier. हम कुछ और, ये तो बैक्टीरिया के बारे में था, इसको एक दफ़ा सम अप करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। What you have learned about bacteria, they look like this, जिनका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम प्लाज्मिड कहते हैं, आउटर मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, और अंदर जो सर्कुलर कॉइल्ड मैंने चीज़ बनाई है इसको डीएनए कहते हैं। एंड डीएनए स्टैंड फॉर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए के ऊपर तमाम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का मीनिंग है जो आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स से आपको मिल रही है, ठीक है। आप सब सिबलिंग्स के, आपकी हाइट, आपके नोज़, आपके आई कलर, आपका हेयर कलर, कुछ चीज़ें आपके पेरेंट्स या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से रिजेंबल कर रही होती हैं। वाई इज़ दैट? बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी इन डीएनए। वो डीएनए जनरेशन टू जनरेशन पास होता है और सिमिलर फीचर्स आगे बेबीज़ में ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की दैट बैक्टीरियाज आर माइक्रोस्कोपिक लिविंग थिंग्स, ठीक है। वी आर नॉट एबल टू सी देम, वी नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। दे आर सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल पर ये कंसिस्ट होता है। दे आर एक्टिंग एज डिकम्पोजर दैट ब्रेक डाउन द लार्ज पार्टिकल इनटू स्मॉलर वन, ठीक है। So this is all about bacteria. Now we will talk about the protist. What are protists? Our next topic is about protist. जैसे हमने बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ा दैट दे आर सिंगल सेल, सेम प्रोटिस्ट आर ऑल्सो सिंगल सेल। बट जो बैक्टीरियाज हैं वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर स्टे करते हैं। वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, वो कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी भी, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है, ठीक है। बट प्रोटिस्ट आर नॉट डिपेंडिंग ऑन सम ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करते। दे आर फ्री मूविंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। They are single cell but they are free moving, ठीक है। We are having two types of protist. One is protozoa and the other is algae. Protozoa and algae, ठीक है। Protozoa में हम बात करते हैं that looks like animals. ठीक है। प्रोटिस्ट की क्वालिटीज़ की, कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं। दे आर सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया बट दे आर फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब होता है कि वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में स्टे नहीं करते। दे कैन मूव ऑल अराउंड ऑन देयर ओन, इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द प्रोटिस्ट आर ईटन बाय फिश बिकॉज दे आर लिविंग इन वाटर, दे आर बीइंग ईटन बाय द फिश, दे आर ऑल्सो एक्ट एज द फूड ऑफ फिश। सम ऑफ देम कॉज डिजीजेज, इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो डिजीजेज भी कॉज करते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल है अमीबा, ठीक है। अमीबा इज़ अ प्रोटिस्ट, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि प्रोटिस्ट जो हैं वो टू टाइप्स के, प्रोटोजोआ, आई हैव रिटन देयर, एंड एल्गी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटिस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। दे आर सिंगल सेल्ड, दे आर फ्री लिविंग, सम ऑफ देम आर ईटन बाय द फिश एंड सम ऑफ देम आर कॉजिंग द डिफरेंट डिजीजेस। जो एक डिजीज़ कॉज करने का एनिमल है जिसकी एग्जांपल मैं आपको देने लगी हूँ, दैट इज़ अमीबा, ठीक है। इट लुक्स लाइक दैट। Here you can see that I have drawn the diagram of amoeba. It looks like that. उसकी इस तरह की आपको legs और arms की तरह की इसकी shape नज़र आती है. It's a kind of animal that lives in water. ये आपको water में नज़र आता है. Also in the rotting food, जो गला सड़ा सा गंदा सा खाना होता है उसमें आपको मिलेगा. Also in the human body में भी होता है, ठीक है.
दे आर हैविंग द आर्म्स लाइक स्ट्रक्चर, जैसे आप इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इट सीम्स लाइक इट्स हैविंग द आर्म्स, ठीक है। ये आर्म्स इसको हेल्प करती है अपनी फूड को ग्रास्प करने के लिए, अपनी फूड को होल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, और फिर ये अपनी बॉडी के अंदर लेके जाता है और उसको खाता है, ठीक है। द सेंट्रल राउंडेड थिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियस, जो इसके ब्रेन के तौर पर एक्ट कर रहा है, और इसको हम वैक्यूल कहते हैं, जिसमें इसका अपना फूड मटीरियल होता है, ठीक है। सो अमीबा इज अ एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमने प्रोटिस्ट में फर्स्ट में पढ़ा था कि प्रोटिस्ट आर हैविंग टू टाइप्स, वन इज प्रोटोजोआ एंड अदर इज एल्गी, ठीक है। तो जो प्रोटोजोआ में एग्जाम्पल है वो प्रोटिस्ट की, दैट इज अमीबा, जो कि फूड पॉइजनिंग में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। क्वेश्चन इज हाउ इट कम्स इनटू ह्यूमन बॉडी। आपको पता है जब हम इम्प्योर वाटर पीते हैं जिसमें बहुत सारे सॉल्ट्स और मिनरल्स होते हैं, तो अमीबा ऑल्सो लिविंग इन द वाटर, ये पानी में भी रहता है, तो वो इम्प्योर जो वाटर होता है उसमें अमीबा भी डेफिनेटली इंक्लूड होता है, और हम जब उसको अपनी बॉडी के अंदर ले जाते हैं पानी के थ्रू, तो दैट कॉज डिजीजेज इन आवर बॉडी, जिससे आपका स्टमक अपसेट हो जाता है और आपको फूड पॉइजनिंग हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट अमीबा, अ टाइप ऑफ प्रोटिस्ट, राइट। Then we are having another example of algae. Let's see what it is all about. Okay, if we talk about the algae, आप सब ने देखा होगा कि प्लांट्स के पास सॉइल के ऊपर ग्रीन कलर का कुछ लगा होता है, ठीक है, वो एक्चुअली एल्गी होती है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो आपके घर में हॉज पाइप होते हैं जिससे आप पानी भरते हो, पाइप जो होता है उसके अंदर भी ग्रीन कलर का कुछ लगा होता है, वो भी एक्चुअली एल्गी होती है। कभी कभी आपके टैप वाटर में से ग्रीन कलर का कुछ निकल के आ रहा होता है जो बहुत स्लिपरी सा और ग्रीनिश डार्क ग्रीन कलर में होता है, उसको भी एल्गी कहते हैं। वन मोर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा हो कि किसी जगह पे कोई खड़ा पानी है, किसी पॉन्ड्स वगैरह में जहाँ पे कोई तालाब है, पानी खड़ा हुआ है, मूव नहीं कर रहा, उसके ऊपर ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, वो ग्रीन लेयर भी एक्चुअली एल्गी होती है, ठीक है। अब आपका काम क्या है, यू हैव टू सी कि आपके घर में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सॉइल हो वो हल्की सी मॉइस्ट हो, मॉइस्ट का मीनिंग होता है हल्की सी नमी वाली जगह हो, उसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर के स्पोर्स होंगे, वो एक्चुअली एल्गी होती है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप इसको ग्रो भी करा सकते हो। हाउ, लेट मी टेल यू। आपने किसी भी सॉइल वाली जगह को, उस पर हल्का सा पानी लगाना है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई खाने की चीज़ या कुछ ऐसा कोई प्लांट ग्रो करा दो, और आप देखोगे थोड़े दिनों के बाद आफ्टर 1 वीक उसके ऊपर ग्रीन कलर के स्पोर्स बनना शुरू हो जाएंगे, वो जो एल्गी होती है, ठीक है। तो ज़्यादा देर के लिए अगर हम प्लांट्स के पास पानी खड़ा रखते हैं तो जब पानी ड्राई हो जाता है उसके ऊपर ये एल्गी आ जाती है, ठीक है। एल्गी आर ऑल्सो सिंगल सेल, सिंगल भी होते हैं बट बहुत सारों के पास मल्टी सेलुलर सेल्स भी होते हैं, बहुत सारों के पास बहुत सारे और सेल्स भी होते हैं। दे आर लाइक प्लांट। अब ये प्लांट से रिजेंबल कैसे करते हैं? देर आर 2 रीजन। वन, दे लुक ग्रीन एंड यू ऑल नो दैट द ग्रीन कलर ऑफ प्लांट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? शाबाश अब्दुल्ला, द ग्रीन कलर इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। तो जब प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है उसकी वजह से दे आर कंसिडर्ड एज प्लांट। ऑल्सो प्लांट्स आर एबल टू प्रिपेयर देयर ऑन फूड, वो अपनी फूड खुद बना सकते हैं। सेम गोज विद द एल्गी, एल्गी भी अपनी फूड खुद प्रिपेयर कर सकता है, तो इस वजह से हम इसको प्लांट से रिजेंबल करते हैं। कुछ एल्गी जो है वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट सम वी आर एबल टू सी देम, जैसे भी मैं आपको एग्जांपल्स दे रही थी वो एल्गी आप सब देख सकते हैं। नाउ लेट मी जस्ट राइट द पॉइंट्स ऑन द बोर्ड एंड देन आई विल एक्सप्लेन टू यू वन मोर टाइम, ठीक है। They looks like a plant, they have one or multi cell, बहुत सारे cells होते हैं and they can prepare their own food, ठीक है। This is all about the protist, protozoa and algae। Protozoa में हमने amoeba की example देखी, that the diagram is drawn on the right side, left side, और protist में हमने algae के बारे में देखा that it is resembled like plant because of the ability to prepare the food or having multicellular cells, ठीक है। Now let's see like either we are having any related question answer on the notebook or on the reading book or not. Here we go with the exercise work. We are already done with this question. आपने plants और fungi के बारे में differences already write कर लिए हैं, ठीक है। Our today's topic question is the 2 main types of protist. आज आपने पढ़ा है, can you tell me like what are the 2 main types of the protist? Well done, grade 5. The 2 main types are protozoa and algae, ठीक है। This will be the answer. आप उस क्वेश्चन में लिखोगे there are 2 main types of protists, protozoa and algae. I am writing number 2 here, ठीक है। Then we are having another question, the number of cells that bacteria have.
बैक्टीरिया में कितने सेल्स होते हैं? शाबाश फातिमा जाहिर, द बैक्टीरिया कंटेनिंग जस्ट वन सेल, उसमें सिर्फ एक सेल होता है। एंड व्हाट अबाउट द ह्यूमन बॉडी? इट्स हैविंग मल्टीपल सेल, मिलियन ट्रिलियन सेल्स होते हैं, ठीक है। तो आप इसके आंसर में जस्ट लिखोगे नंबर 3 का आंसर आप लिखोगे, यहाँ पे दे की जगह आप लिखोगे बैक्टीरिया हैव ओनली वन सेल, ठीक है। दिस विल बी द आंसर। दे की जगह पे आप लिखोगे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, ओके। बैक्टीरिया हैव ओनली हैव वन सेल। दिस विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देन क्वेश्चन नंबर 4 देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ बैक्टीरिया? कैन यू पीपल टेल मी लाइक व्हाट इज द रोल ऑफ द बैक्टीरिया? Well done, Moiz. You are saying it very right. Bacteria act as decomposer. So you will be writing the answer from here. यहाँ से यहाँ तक आप इसका आंसर लिखोगे नंबर 4 का, that the role of bacteria is to act as decomposer. They break down the chemical element inside the other organism. Germs are bacteria. Okay. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द टू थिंग दैट फंजाई अटैच themselves. ये आपने बताना है कि कौन सी 2 चीज़ें हैं जिस पे फंजाई अपने आप को अटैच कर लेते हैं। अपने घर में देखो, मामा से पूछो कि किस चीज़ के ऊपर आपको लगता है कि फंगस है, वो जिस भी चीज़ के ऊपर फंगस है आपने उसके नेम राइट कर देना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आई होप द कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर टू यू। इफ स्टिल यू फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी ऑन द यूट्यूब लिंक। आप वहाँ पे कमेंट्स करो, आई विल एक्सप्लेन टू यू. So do your work on time and send it to me on the Google Classroom. See you later in the next video. All the very best. Have a good time. Allah Hafiz.